Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. Dear student, this video is the second part of the previous video, and in this video we are going to discuss the most important short and long questions from the chapter number 13, 14, 15 and 16. स्टूडेंट्स, जो बात मैंने आपको पहले बताई थी दोबारा से एक बार आपको रिमाइंड करा दूं कि आपने सबसे पहले अपनी पेयरिंग स्कीम देखनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी कुछ दिनों पहले अपलोड की है। तो वहाँ से आपने लॉन्ग क्वेश्चंस सिलेक्ट कर लेने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के चैप्टर सिलेक्ट कर लेने हैं और उसके बाद आपने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है। और एक और बात कि आपने सबसे पहले आपने जब भी प्रेपरेशन करनी है तो ये जो आपके चैप्टर नंबर 13, 14, 15 और 16 है, इनकी आपने मेन डेफिनेशंस कर लेनी है। एज़ यू ऑल नो कि आपका जो पेपर है वो आपका इस बार SLO बेस्ड होना है, मीन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड। तो आपके मोस्टली पेपर तो आपका नॉलेज बेस्ड होगा, बट सम हाउ आपका कुछ परसेंट जो है वो एनालिटिकल बेस्ड आपकी अंडरस्टैंडिंग के रिलेटेड होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड एंड ट्यून, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरुसा इरम। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 13 की और मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। एंड द फर्स्ट वन इज़ define biochemistry, define second one is define polysaccharides and give their properties. Third is write the characteristics of monosaccharide. Fourth one is define amino acids, give its general formula. Fifth one is differentiate between essential and non-essential amino acid. Sixth one is write the sources and uses of vitamin A and D. And the seventh one is write the carbohydrates, define carbohydrates and their uses. Question number 8 is differentiate between ghee and oil. Ninth one is write the function of DNA. 10 is mention या write the types of vitamins. इसमें आपने vitamins की types लिखनी है. And the question number 11 is how can you justify RNA works like a messenger? Now we will discuss the most important long questions from the chapter number 13. And the first one is define monosaccharides and oligosaccharides, give their characteristics. Second one is give uses and sources of carbohydrates. Third one is define amino acid and how they are the building blocks of proteins. Fourth one is to explain the sources and uses of proteins and lipids. Fifth one is define vitamins, discuss the types, sources, uses, and importance of vitamins. Also write the effects of deficiency of vitamins. इसमें स्टूडेंट्स आपका जो विटामिन टॉपिक है जिसमें वाटर सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, तो वहाँ पे एक टेबल मेंशन है, आपने उस टेबल को इस लॉन्ग में करना है। And the sixth one is what are carbohydrates, how amino acids are prepared. Moving on toward the next chapter, which is the chapter number 14. इसमें डियर स्टूडेंट्स आपके मैंने क्वेश्चंस राइट किए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज़ डिफाइन एटमॉस्फेयर एंड इट्स स्फीयर्स। इट्स स्फीयर्स का मीनिंग है कि आपने इसकी लेयर्स के नेम्स लिखते हैं, जो कि आपकी स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर आती हैं उनको। सेकेंड वन इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंट। हम मोस्टली एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट को सेम थिंग कंसिडर करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू these are two different
parameters. So write the definitions for the difference. And the question number 3 is name the major constituent of troposphere. Fourth one is define pollutant, differentiate between the primary pollutant and the secondary pollutant. Fifth one is define greenhouse effect. Sixth one is global warming and its effect. Seventh one is why CO2 is called a greenhouse gas. ये आपका most important question है. CO2 is responsible for heating up the atmosphere. How? Ninth is the effects of acid rain. ये आपने long में prepare कर लेना है. Tenth one is define ozone hole and where was it noticed first time. 11th is write the effects of ozone depletion. ये भी आपने लॉन्ग में प्रिपेयर करना है. उसके बाद ये नेक्स्ट आपने शॉर्ट में करना है वेयर द ओजोन लेयर इज फाउंड. इसको आपने शॉर्ट में और एमसीक्यूज के लिए करना है कि ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है. एंड द 13 इज हाउ एसिड रेन इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ सॉइल. तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन से आया है. द 14 इज वाई CO2 इज कंसिडर्ड एज अ हेल्थ हैजर्ड. एंड द 15 इज हाउ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एमिटेड नेचुरली. इसको आपने शॉर्ट में कर लेना है. तो डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आपने मोस्टली थिंग्स तो आपकी शॉर्ट में है लेकिन आपने इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन और पोल्यूटेंट, इसके अलावा आपने ओजोन ओजोन होल ओजोन डिप्लीशन वाला जो है इसको आपने लॉन्ग में प्रिपेयर कर लेना है. और इसके अलावा आपने जो मेन मेन डेफिनेशंस हैं उनको शॉर्ट में अच्छे से कर लेना है. Now we will discuss the chapter number 15 important short questions. The first is how water rises in plants. तो इसका वैसे सबको ही पता है थ्रू कैपिलरी एक्शन जिसमें वाटर जो है रूट से अबव मूव करना शुरू करता है टू द स्टेम्स एंड लीव्स. Write the four properties of water. Third one is define capillary action. Four is why the water molecule is polar. Fifth, that is the most important, and it is differentiate between soft water and hard water. How six is how temporary hardness of water can be removed by the Clark's method. Seventh is define boiler scales. How are they removed? Eighth is why are pesticides and fertilizers used? Ninth is why non-polar compounds are insoluble in water. 10 is how water ये आपका दोबारा से आ गया. 11 write the disadvantages of detergents. 12th is name some waterborne diseases and the 13 is define fluorosis. अब डियर स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की. तो द फर्स्ट वन इज कॉजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर एंड मेथड्स टू इम्प्रूव द हार्डनेस. तो आपकी हार्डनेस टेम्परेरी भी आप पढ़ते हैं बुक्स में और परमानेंट हार्डनेस भी पढ़ते हैं. तो हार्डनेस को किस तरह से रिमूव किया जाता है जो आपकी बुक पे क्लार्क्स मेथड या बाय बॉइलिंग जिसमें जो कि जिसके साथ आपकी केमिकल रिएक्शंस भी गिवन है. आप इन मेथड्स को लिखेंगे विद देयर रिएक्शंस. सेकंड वन इज़ व्हाट आर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड राइट देयर इफेक्ट्स. इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो किस तरह से इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं और उनके क्या इफ़ेक्ट हैं हमारे इन्वायरमेंट पे. द थर्ड इज़ इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड द फोर्थ इज़ व्हाट राइट अ नोट ऑन वाटर बोर्न डिजीज़. इसमें आपकी बुक पे ऑलमोस्ट 12-13 डिजीज़ हैं. तो आप इसमें एट डिजीज़ को अच्छे से कर लें जिसमें आपकी बुक पे गिवन है आपने उनको अच्छे तरीके से 8 को कर लेना है. Now moving on toward the last chapter of your book.
सबसे पहले इसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिफाइन मेटलर्जी। सेकंड वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द मिनरल्स एंड ओर्स। थर्ड इज स्टेट ग्रेविटी सेपरेशन। फोर्थ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। फिफ्थ इज डिफाइन रोस्टिंग, हाउ इज इट कैरिड आउट। सिक्स्थ इज raw materials of Solvay's process. Seventh is advantages of Solvay process. Eighth is petroleum. Ninth is formation of petroleum. Tenth is how roasting is carried out. 11th is differentiate between the crude oil and the residual oil. इसमें आपने इनकी बॉइलिंग पॉइंट की रेंज लिखनी है और उनके यूजेस, इनका डिफरेंस लिखना है कि हम इनको कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द डीजल ऑयल एंड द फ्यूल ऑयल। 13 इज हाउ रॉ मटेरियल्स are used in the manufacturing of urea, and the 14 is how NaHCO3 is converted into Na2CO3। अब हम डियर स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, जिसमें स्मेल्टिंग या बेसिमराइजेशन करना है। सेकंड वन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वेज प्रोसेस। इसमें आपने इसके रिएक्शंस एडवांटेजेस लिखने हैं, इसकी फॉर्मेशन लिखनी है। एंड द थर्ड वन, ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है आपका मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। और डियर स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका लास्ट पार्ट शॉर्ट का आना है उसमें मोस्टली शॉर्ट इस चैप्टर से आने हैं, और 90% चांसेस हैं कि आपकी जो हाईलाइटेड डेफिनेशंस हैं लाइक मेटलर्जी, ग्रेविटी सेपरेशन, मिनरल्स, ओर्स, ये जो आपके स्टार्टिंग वाले 2-3 पेजेस हैं आपने इनको बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि आपका जो लास्ट पार्ट है यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आने हैं। और इस चैप्टर का मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। और डियर स्टूडेंट्स, आपने इतने ज़्यादा क्वेश्चंस को देख के बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने पेयरिंग स्कीम वाली जो वीडियो है वहाँ से चैप्टर्स को पहले सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस को करना है, और शॉर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया आपने कौन कौन से करने हैं। Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and thank you so much for listening me.